حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر، وہ ارحم الراحمین ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ دے گا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعائیں تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، اللہ سے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور دعاؤں سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ صبر کریں، بہترین وقت بھی آئے گا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں جب کسی انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر سب چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج، تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو اللہ بڑی پسند کرتا ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہایا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جنہیں رشتہ نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر چھپی ہوتی ہے، باہر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، کیونکہ اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔
तौबा कबूल होने की निशानी यह है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया मगर इसका सुकून सिर्फ अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वह दिलासा दे रहा हो कि मैं हूँ न तुम्हारे साथ। जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाता है वह उसकी हिफाजत में आ जाता है और जो उस पर भरोसा रखता है वह अपने सब काम उसके सुपुर्द कर देता है। जो इंसान कुरान के मुताबिक अमल करेगा वह हमेशा सबसे आगे रहेगा। इस दुनिया में तुम्हें जांचा जा रहा है लेकिन तुम्हें पैदा दूसरी जगह के लिए किया गया है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। सब्र दिल दहला देने वाली मुसीबतों को भी आसान बना देते हैं, इसलिए सब्र का दामन न छोड़ें। अपनी ज़बान को नर्म और सलाम के आदी बनाओ, इससे तुम्हारे दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम होंगे। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। लोगों से इखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और आमाल में उनसे अलहदा रहो। हर वह मोहब्बत जो राह खुदा में न हो गुमराही है और उस पर भरोसा करना बेकार। कोई शख्स आखिरत की इज़्ज़त और मर्तबे को 3 चीज़ों के बग़ैर नहीं ख़रीद सकता। नंबर 1 इखलास अमल, नंबर 2 दुनिया की उम्मीद को छोटा करना और नंबर 3 तक़वी को अजीम पकड़ना। जब भलाई को देखो तो उसे हासिल करो और जब बुराई को देखो तो उससे मुंह फेर लो। दुनिया की ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें देकर आखिरत में काम आने वाली और बाकी रहने वाली चीज़ें ख़रीद लो। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का आशिक हो जाता है वह दुनिया की परवाह नहीं करता। हमसफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कद्र करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जहाँ सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। सुनी सुनाई बातों पर फ़ौरन यकीन न किया करें, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज़्यादा फैलता है। जिस जात को राज़ी करने में सुकून है, इंसान उसी जात को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। जिस्म मत संवारो बल्कि रूह को संवारो, क्योंकि जिस्म को मिट्टी में मिल जाना है और रूह को खुदा के पास जाना है। जब अल्लाह चाहता है किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। ज़िंदगी 2 ही दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे ख़िलाफ़। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ हो उस दिन सब्र करना। तुम खुश हो या तकलीफ़ में सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। किसी को उदास पाओ तो नसीहत करने के बजाय उसकी बातें एहसास से, मोहब्बत से और बिना किसी गर्ज से सुन लिया करो। कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन कुरान तुम्हें बदल सकता है। आप किसी भी इंसान को 2 चीज़ों के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह के तरफ झुक जाओ, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है।
जिस तरह शबनम की कतरें मुरझाए हुए फूलों में ताजगी बख्शती हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब अल्लाह तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई साथी नहीं है। जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वह ज़ात किसी को मायूस नहीं करती है। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर तुम्हारी मुक़द्दर बना देता है। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई है। वह लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता करता है जो उनके गुमान में भी नहीं होते। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। आप कितने ही मर्जी अच्छे हो जाएं, जो लोग आपको गलत समझते हैं वह आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। इखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। तुम वक्त को छोटी चीज़ मत समझो, इसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। दुनिया में सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो चीख कर और बदलहजी से अपने वालिदैन से बात करता है। ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा दुख इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि माँ बाप परेशान न हो। बेहसी कह लें या नाकद्र, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। अगर अल्लाह ने वह ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं करते थे, तो यकीन रखो वह कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। ज़िंदगी की उलझनें शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वह समझदार हो गया है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नर्म मिजाज बना देते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है और मोहब्बत हमारी खुशियों का खजाना है। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। खुशी के 5 असूल हैं। नफ़रत करने वाले मत बने, फजूल फ़िक्रें मत पालें, सादगी अपनाएं, ज़्यादा देने वाले बने और तवक्कात कम रखें। कितनी तल्ख़ बात है ना कि दूसरों के अंदर से कीड़े निकालने वालों को खुद के अंदर सांप नज़र क्यों नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, गलत बात पर गुस्सा आ जाना आपकी शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे किए बगैर सुकून नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दयानतदारी खुद को पहचानना है। लोगों के दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके अख्तियार में है। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख
परेशानियां आती हैं, उनका इस्तेहार निकालने के लिए हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता है। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस न हो। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। ज़िंदगी की हर ठोकरें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता, कई बार हम बिखर भी जाते हैं। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस शिद्दत और तकलीफ़ में आ जाता है कि रो लेने से भी सुकून हासिल नहीं होता। इस दुनिया में हकीकी ताल्लुक़ वह होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहता है। ख़तरनाक वह होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं, चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक पत्थर भी तकदीर संवार सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी में साथ देने वाले अगर बेबस और लाचार हो जाएं तो उन्हें संभाला जाता है, तब्दील नहीं किया जाता है। राबतें ख़त्म हो जाएं या रिश्ते टूट जाएं तो भी मोहब्बतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह यादें काबिज़ रहती हैं, इसी तरह मोहब्बत भी दिल से दस्तबरदार नहीं होती। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनसे साथ रहने के लिए भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें कि कौन कौन साथ चलता है। आपने सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है, जिसने खुद आपसे आसानियों का वादा किया है। यह कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे क्यों आजमाता है, बल्कि यह सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वह मोहब्बत करता है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। जब तक हराम मौजूद है आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता, फिर चाहे वह हराम ताल्लुक़ के शक्ल में हो या गीबत की शक्ल में। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियाँ अल्लाह नामुकम्मल नहीं छोड़ता है। वक्त दिया करो अपने चाहने वालों को, किसी और ने दे दिया तो बेकद्र हो जाओगे। ऐसे साथी की क़ुर्बत से तन्हाई बेहतर है जो हमें दिली और जहनी अज़ियत के अलावा कुछ भी न दे सके। जिनसे रूहें वाबस्ता हो जाएं, उनसे दिल नहीं भरा करते हैं। किस्मत से मिलते हैं साथ निभाने वाले, एक बार खो दें तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। इंसान होने के लिए इंसानियत का होना ज़रूरी है। इंसान होने से हर कोई इंसान नहीं हो जाता। जब भी गिर के देखा सजदे में, खुद को बुलंदी पे महसूस किया है मैंने। गलत फहमियाँ खा जाती हैं ताल्लुक़ को, कोई बात हो तो बात कर लिया करें। यादाश्त भी इंसान के दुश्मन है, गुजरा हुआ वक्त याद आए तो रोना आता है। जो लोग दूसरों को गिराने की सोचते हैं, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लोगों की इज़्ज़त उनके डर से नहीं, बल्कि उनकी सीरत देख कर करो, और इज़्ज़त उनकी ही करो जो काबिले इज़्ज़त हों। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग यह बोल कर यकीन दिलाते हैं, फिर भरोसा तोड़ जाते हैं। यह वक्त और हालात का मसला होता है। कभी ज़िंदगी हसीन लगती है तो कभी ज़िंदगी से दिल भर जाता है।
اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ نصیحت کے نام پر لوگوں کی برائی کرنے آتے ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر کہاں تک لے جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں پر غور نہ کیا کریں۔ باتوں سے تو سب اپنے ہوتے ہیں، مگر صرف باتوں سے ہی کیا ہوتا ہے؟ اور جب حالات نظر آ رہے ہوں تو کچھ خواہشوں کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ویران رشتوں میں ڈھونڈنا ہے خود کو، اپنوں نے ڈبایا ہے کسی گہرے سمندر میں۔ لوگ باتوں باتوں میں کتنا ساتھ نبھا جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے وقت ہی بدل دیں گے اب۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ کچھ لوگ اچھے لوگوں کو کھو کر برے لوگوں میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا کی بھیڑ میں منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ ارادے میرے بھی ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اصل دشمن اس کے خواب ہوتے ہیں، جو خود دکھائی تو دیتے ہیں مگر پورے نہیں ہوتے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسان سے لیتے ہیں۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا جہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، رشتے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور تھوڑا صبر کریں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تنہائی بہترین ہے جھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد باتوں سے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت ختم کر دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارے لیے گواہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہیں۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کیا کرو۔ اپنے غموں کا جائزہ لے کہ کیا ہم صرف دنیا کی
چیزوں پر غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے۔ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو عزت ختم ہو جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔